جی تو دوستو اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم جی دوستو، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے، خیریت سے ہوں گے۔ جی تو دوستو آج جو ہم وائس سٹچ میں سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے سوٹ کٹنگ کرنا، وہ بھی 2 سوٹ کٹنگ کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ نے مکمل ویڈیو میں اینڈ تک ویڈیو کو دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے کہ میں 2 سوٹ کٹنگ کس طرح کر رہا ہوں اور کس طریقے سے کر رہا ہوں، اور یہی پرفیکٹ طریقہ ہے۔ اگر آپ یہ صحیح طرح سے سیکھ پائیں گے تو آپ کو بھی انشاءاللہ تعالی پرفیکٹ سوٹ کٹنگ کرنا آ جائے گا۔ آپ نے توجہ سے ویڈیو دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے سوٹ کو پراپر تہہ لگا لینی ہے، جتنی ہماری لینتھ ہے وہاں تک ہم نے بالکل اس کو ڈبل کر لینا ہے، تہہ لگا لینی ہے۔ دونوں سوٹوں کو 3 ہو، جتنے سوٹ بھی ہوں آپ اسی کولیے سے کٹنگ کریں گے۔ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ سوٹ بھی ہوں گے، آپ اسی طریقے سے ان کو کٹنگ کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے جتنے سوٹ بھی ہیں ان کو اس طریقے سے تہہ لگا سکتی ہیں اور اس کے بعد ان کی چوڑائی دیکھ لینی ہے۔ ہمیں چوڑائی چاہیے 27.5 اور یہ کپڑا 28 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی لینتھ دیکھ لینی ہے۔ لینتھ ہماری کتنی ہے اس میں ہم نے آگے سے 2 انچ ایکسٹرا رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آدھی انچ ہمارا اوپر سے اندر چلا جائے گا اور 1.5 انچ ہمارا فولڈنگ میں چلا جائے گا۔ ہماری لینتھ 40 ہے اور پلس 2 انچ ہم نے کر لینا ہے 42 انچ۔ ہم نے اس طرح سے ہم نے نشان لگا لینا ہے دونوں سوٹوں کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے ان دونوں کو کٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو ہم ایک دفعہ کٹ کر کے سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کے بعد اسی طرح سے ہم نے دیکھ لینا ہے۔ ہماری اگر کپڑے کی زیادہ پرابلم نہیں آ رہی کہ شلوار اس کپڑے سے مزید جو آگے کپڑا ہے اس میں سے نکل جائے گی، اگر ایزیلی نکل جاتی ہے تو پھر ہم نے بازوں کو اسی طرح سے نکالنا ہے۔ ہم نے کپڑے اپنے کو مینج کر کے اس کے بعد ہماری لینتھ ہم نے جو کاٹنی ہے وہ ہے 24، ویسے ہمارے بازو جو ہیں وہ 23 ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے 24 پہ رکھ کے دونوں کو اسی طرح سے کاٹ لینا ہے، کیونکہ اس ٹائم ہم جو کاٹ رہے ہیں وہ 2 سوٹ ایک سائز کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی ہم نے تہہ لگا کے سائڈ پہ کر لینا ہے۔ جی تو دوستو یہ کپڑا ہمارے پاس جو بچا ہے 2 شلواروں کا کپڑا ہے، اس میں سے ایک شلوار الگ طریقے سے نکالنے سکھاؤں گا، دوسری شلوار الگ طریقے سے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ میں اینڈ پہ یہ پارٹ 2 اس ویڈیو کو میں بناؤں گا اور میں آپ کو الگ الگ شلواریں کٹنگ کرنا سکھاؤں گا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے فرنٹ بیک ہم نے کس طرح کٹنگ کرنا ہے۔ فرنٹ بیک ہم نے سب سے پہلے ہم نے اپنے کاؤنٹر پہ کچھ اس طریقے سے بچھا لینا ہے اور اس کو ہم نے آئرن کی مدد سے پریس کر لینا ہے اچھے طریقے سے، جب تک ہم مطمئن نہیں ہو جاتے کہ ہمارا سوٹ اچھی طرح پریس ہو گیا ہے۔ اچھی طرح پریس مارنے کے بعد ہم نے جو ہے اس کو ہم نے ایسے فولڈ کر لینے ہیں تاکہ ہماری سیدھی سائڈ جو ہے وہ اندر کی طرف آئے، ٹھیک ہے۔ جب تہہ ہم لگائیں تو ہماری سیدھی سائڈ اندر کو آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اسی طرح ہم نے اس کے اوپر بھی پریس لگا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھے طریقے سے پریس لگا لینی ہے اور پھر کچھ اس طریقے سے ہم نے ایک طرف سے دوسری طرف سے دونوں طرف سے کونوں سے پکڑ کے سوٹ کو اپوزٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس دوسری طرف سے بھی ہم نے اچھی طرح سے اس کو پریس کر لینا ہے، بالکل کونے فرنٹ بیک ہمارا بالکل برابر ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پریس کر لینا ہے دونوں کو اچھی طرح سے تاکہ ہماری تہیں بالکل اچھی طرح سے ایڈجسٹ ہو جائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ جی تو دوستوں میں نے ایک پہلے بھی کٹنگ کی ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، آپ اس کو بھی جا کر دیکھیں اس میں کس طرح میں نے کٹنگ کرنی سکھائی ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر لینا ہے، بیک فرنٹ کو الگ الگ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی اس کو ہم سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور ابھی ہم دوسرے پہ اسی طرح اپلائی کریں گے جس طرح ہم نے پہلے والے کو پریس کیا ہے اور اس کو تہیں لگائی ہیں، اسی طرح سے ہم نے اس کو بھی کر لینا ہے۔ یا آپ کے پاس جتنے سوٹ بھی ہیں ایک سائز کے ان کو آپ نے پہلے سے اس طرح ریڈی کر لینا ہے، پریس کر لینا ہے
अच्छे तरीके से सरवटें निकल जाए। और इसी तरह से हमने इसको ऑपोजिट वाली साइड अपने सामने ले आनी है और इसको भी हमने उसी के ऊपर बिल्कुल एडजस्ट कर लेना है। जैसे हमारा फ्रंट उसी तरह हमारी बैक साइड जो है दोनों बराबर हो, और इसको भी हमने दरमियान से कटिंग कर लेनी है। ठीक है, 2 पीस कर लेने हैं जी। तो ये हमारे 2 पीस हो गए। अब ये हमारी बैक साइड है, एक को हमने बैक बना लेना है, एक को हमने फ्रंट बनाना है। ठीक है, ये बिल्कुल बराबर कटे हुए हैं और एक को हम इस तरह बिछा लेंगे और इसके ऊपर दूसरे सूट का पीस जो बैक है वो हम इसके ऊपर उसी तरह तय लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए इतना बारीकी से समझाने का मतलब ये है कि जो लोग बिल्कुल नए नए चैनल पे आ रहे हैं, जो लोग बिल्कुल नए नए सीख रहे हैं, उनको बिल्कुल छोटी छोटी बातों का भी पता होगा तो वो सीख पाएंगे। ये छोटी छोटी बातें बताने का मतलब यही है कि आप अच्छे तरीके से सीख पाएँ ताकि आपको फ़ायदा हो। कोई वीडियो भी आप देखें अच्छे तरीके से आप सीखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह हमने फ्रंट को ले आना है, फ्रंट को भी हमने उसी तरह बिल्कुल तय लगा लेनी है, बिल्कुल बराबर तरीके से एडजस्ट कर लेना है हमने। और उसके बाद हमने फ्रंट को भी उसके ऊपर हमने तय लगा लेनी है और आयरन की मदद से हमने प्रेस कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको भी। ठीक है, सबसे नीचे 2 हमारे बैक आ जाएंगे, ऊपर हमने 2 फ्रंट रख लिए। ठीक है, ये बिल्कुल हमारे एडजस्ट हो चुके हैं और अभी हमने यहाँ से हाले का निशान लगाना है। ऊपर वाले 2 पीसों पे हमने याद रखना लगाना है, यहाँ से हमने डाई रख लेना है, यहाँ से भी हमने डाई, और यहाँ से हमने जो है हमारा 9.5 तीर है और हमने 9.25 रखना है। ठीक है, और यहाँ से हमने आधी इंच कम कर लेना है। ठीक है, क्योंकि तीरे को आधी इंच कम कर लेते हैं। यहाँ से भी हमने डाउन कर लेना है 2.5 इंच। ठीक है, और डाई पे निशान लगा लेना है हमने और उसके बाद हमने आल मोड़ का निशान लगाना है। यहाँ से हमने 10 रख लेना है और कटिंग में हमारा ये चीज़ जहाँ आ जाएगी और हमने यहाँ से निशान लगा लेने हैं स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट। ये हमारे निशान लग गए और यहाँ से हमने हाले को गोल कर लेना है, क्योंकि हमारा बैन है, कॉलर नहीं है। अगर कॉलर होता है तो उसका अलग होता है, बैन का अलग होता है। और यहाँ से हमारा आलमोड़ 11 आएगा, 11.5 तैयार आएगा। ठीक है ना, और इसको हमने 0.25 इंच अंदर की तरफ से चौक से निशान लगा लेना है अपनी लाइन से हट गई। और यहाँ से भी हमने एक फिटिंग का निशान लगा लेना है। यहाँ से हमने 5 रखना है, यहाँ से हमने 7 रखना है और यहाँ से हमने 4.5 रखना है। ठीक है, लेंथ के हिसाब के मुताबिक। और यहाँ से हमारा जो घेरा 27.5 है। ठीक है, 27 है और इसमें आधी इंच हमने ऐड करना है तो हमारा 27.5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा 26 है और हमने ऐड करके तकरीबन 25.5 रख लेना है। ये हमारा तैयार साइज है। ठीक है ना, और यहाँ से हमने चौक से फिटिंग का निशान लगा लेना है और इसके बाद हमने फ्रंट पट्टी यहाँ से रखनी है 13 इंच। और उसके बाद हम आ जाएंगे अपनी लेंथ पे। हमने लेंथ ले लेनी है, इसकी लेंथ 40 है, इसका गोल घेरा है और इसमें हम आधी इंच ऐड करेंगे, 40.5 हो जाएगा। 40.5 पे भी हम निशान लगा लेंगे और 40 पे भी हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, और हमने इस तरह देख लेना कि हमारा घेरा बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। स्केल की मदद से हमें यही फ़ायदा होता है कि हम अपने घेरे को बिल्कुल स्ट्रेट कर पाते हैं। और अब घेरे को हमने थोड़ा सा बढ़ा कर रखना है। हमारा 27.5 है, यहाँ से हमने 28 रखना है, इसलिए कि हमने इसको
डबल घेरा बनाना है, ठीक है। डबल सिलाई करनी है इसके ऊपर और उसमें हमें आधी इंच एग्जैक्ट कपड़ा चाहिए होता है। वैसे हम इसको जो है मतलब कम भी रख सकते हैं, ठीक है, 2 सूत्र 3 सूत्र भी रख सकते हैं, लेकिन जब हमें गोल घेरा फोल्ड करना होता है फिर हमें आधी इंच मस्ट रखना होता है। और यहाँ से भी हम कुछ हाथ की मदद से इसकी गुलाई कर लेंगे ताकि हम इजीली काटें इसको। और उसके बाद हम कटिंग शुरू करते हैं। हाले से हमने सबसे पहले इसको कट कर लेना है और उसके बाद दस्तीरा तरतीब वार हमने कटिंग करना है। और उसके बाद हमने आर्म और कटिंग कर लेने हैं। ये फ्रंट साइड कटिंग की जा रही है और 2 सूटों की फ्रंट है, ठीक है। आपको नज़र आ रही होगी 2 सूटों की, हम 2 सूट काट रहे हैं। अगर 10 सूट होंगे वो भी आप 10 काटेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच रख लेंगे, यहाँ से 1 इंच, ठीक है। और यहाँ से हम 9.5 और इसी तरह हम स्केल की मदद से इसको थोड़ा सा रेब में जिस तरह हमने निशान लगाए हैं उस तरह हमने निशान लगा लेना है और दोनों पीसों को काट लेना है। ये हम एक टाइम में 2 सूट कटिंग करना सीख रहे हैं, ठीक है। 10 सूट भी होंगे आप इसी तरह से कटिंग करेंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, जितने भी होंगे आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। वो आपका टाइम बचेगा, इस तरह हम बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकते हैं। और इसी तरह हम साइड से कटिंग करेंगे और यहाँ तक हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ तक हमारा कटिंग करना इजी होता है। और उसके बाद हम घेरे वाली तरफ से कटिंग करेंगे तो हमें इजी होगा कटिंग करना, ठीक है। अगर आप एक तरफ से कटिंग करके नीचे लेके आते हैं तो फिर उस तरह आपको मुश्किल होता है घेरा कटिंग करना, गोल घेरा कटिंग करना। स्ट्रेट होता है तो बंदा काट लेता है, लेकिन गोल घेरा कटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसको आपने घेरे वाली तरफ से कटिंग करना शुरू करना है और हमने चेक कर लेना है कि हमारा घेरा बिल्कुल गोल है। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपका घेरा बिल्कुल दोनों तरफ से गोल आ रहा है या नहीं आ रहा। हमारा घेरा बिल्कुल गोल आ रहा है और ये देखें कुछ इस तरह से हमारी कटिंग की लुक आ रही है, इस तरह से कुछ शेप आ रही है हमारी कटिंग की। बिल्कुल माशाल्लाह से परफेक्ट तरीके से कटिंग हो चुकी है फ्रंट की। और साइड से हमने कट लगा लेने हैं जेब का और साइड फिटिंग का। ये हमने 3 कट लगाने होते हैं। और ये हमारी फ्रंट बैक कटिंग हो चुकी है। इसको हम थोड़ा साइड पे कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारा जो है वो हमने बाजू कटिंग करने हैं। उसके बाद हम तीरा कटिंग करेंगे। किस तरीके से हमने बाजू कटिंग करने हैं जो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है और सबसे आसान तरीका है। 5 तरह की कटिंग में आपको इंशाल्लाह करना सिखाऊंगा इसी चैनल पे। तो ये जो है ये सबसे इजी और सबसे आसान कटिंग यही वाली है। इसके बाद भी आपको काफ़ी सारी कटिंग करना सिखाऊंगा। कपड़े को देख के मैनेज करना पड़ता है और उसके बाद उसको उसी तरह से कटिंग करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपका कपड़ा आपके कस्टमर के साइज़ के मुताबिक है, इजीली आप पूरा कर पाएंगे, तो आपको फिर उस तरह से इजी कटिंग करनी है, ठीक है। हम इस तरह से तय लगा लेंगे। जितना हमारा आर्मोर है उसके हिसाब से हम इसकी तय लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा भी होगा तो कोई मसला नहीं। अगर आपको बस कपड़ा एक्स्ट्रा है, आप समझते हैं कि हमारे सूट इजीली काट सकता है, तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा भी रख लेंगे। अगर नहीं तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कपड़ा उतने रखना होगा जितना आपको चाहिए होगा। यहाँ से हमने 3.5 इसको डाउन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से भी हमने एक निशान लगा लेना है। उसके बाद हमने इसकी लेंथ करनी है। लेंथ हमने इसको काटा था जब हमने 24 काटा था, लेकिन हमारा बाजू जो है वो है 23 इंच, ठीक है। तो इसको हमने 2.25 का कफ लगाना है और इसको हमने
21 रखना है, ठीक है। और यहाँ से हमने 9.5 हमारा जो है ना कफ है, और हमने 1 आधी इंच टुकों में हमारा जो है वो आधी इंच हमारा चला जाएगा जो प्लेटें डलनी है उसमें, और आधी इंच हमारा सिलाई का मार्जिन है, ठीक है। और यहाँ से हमने 2.5 इंच नीचे रख के यहाँ से हमने निशान लगा लेना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट हमारा कफ आएगा। और यहाँ से भी हमने 10 है और हमने 10.5 पे इसकी फिटिंग करनी है। और यहाँ से हमारा 11 आर्म हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से हमने इसकी एडजस्टमेंट चौक पट्टी का निशान लगा लेना है 7 7.5 पे। चौक पट्टी से जो फिटिंग है वो हम रख लेंगे और इसको हमने कटिंग कर लेना है, ठीक है। कटिंग कुछ इस तरीके से हमने करनी है। जो हमने निशान लगाया तो उससे हमने थोड़ा पीछे से जो है ना उसको हमने गुलाई करनी है, क्योंकि ये बैक साइड है। और फ्रंट को हमने कुछ इस तरह थोड़ा सा आगे से अपनी लाइन जो लगाई है उस थोड़ा सा आगे से, जिस तरह आप फ्रंट के आलमोर को थोड़ा सा कटिंग करते हैं, इस तरह हमने बाजू को भी थोड़ा सा लाइन से आगे कटिंग करना है। और बाजू को हमने पहले एक बाजू को हमने कटिंग करना है, उसके बाद हमने दूसरे बाजू पे जाना है, ठीक है। पहले देखें, एक मैंने नीचे बिछाया है, पहले एक को मैंने कटिंग कर लिया। अब इसके नीचे 10 बाजू भी होंगे, 10 सूटों के बाजू भी होंगे, 20 के भी होंगे, तो वो हम इजीली एक के बाद कटिंग कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ हमने चौक पट्टी का निशान लगाना है, आयरन की मदद से हम प्रेस कर लेंगे। और यहाँ से हम 6.25 पे निशान लगा लेते हैं। जितना बाजू की लेंथ होती है उसके हिसाब से चौक पट्टी का निशान भी उसी के हिसाब से होता है। और बाद में हमने इस तरह कटिंग कर लेनी है। ये एक बाजू कटिंग करें या आप 5 बाजू कटिंग करें, 10 करें, 15 करें, आपको बहुत इजी और आप बड़े कंफर्टेबल तरीके से कटिंग कर पाएंगे। मुकम्मल बाजू को हमने ऑल राउंड कटिंग कर लेना है, ठीक है। जी तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ये आपसे एक रिक्वेस्ट होती है छोटी सी। और इसी तरह से हमने देखें तय लगा ली, बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ हमारे बाजू कटिंग हो गए। और इंशाल्लाह जब ये हम कमीज़ के साथ ज्वाइन करेंगे तो परफेक्ट तरीके से कमीज़ हमारी बैठेगी इस कटिंग पे इंशाल्लाह। तो उसके बाद हमने डबल तीरा कटिंग करना है, ठीक है। एक तीरे को हमने पहले कटिंग कर लेना है, उसके बाद हम जितने मर्जी उस साइज़ पे हमारे पास सूट है हम इजीली कटिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो जो पहला सूट आप कटिंग कर रहे हैं उसको आपने बड़े ही एहतियात के साथ, प्यार के साथ और पूरी मेहनत के साथ कटिंग करनी है, ताकि आप बाकी के जितने सूट भी हैं वो उसी सूट पे आपने कटिंग करनी होते हैं। तो पहला सूट अगर आपका सही कटिंग नहीं होगा, ठीक तरीके से कटिंग नहीं होगा, तो बाद में आपको सारे सूटों में मसला आ जाएगा। एक तो आपने कस्टमर का साइज़ बड़े प्यार से लेना है, बड़े ध्यान से लेना है। यहाँ से हमने 5 रख लेना है, क्योंकि कस्टमर के हिसाब के मुताबिक 5 आ रहा है। और यहाँ से हमने 4 रखना है फ़िलहाल, ठीक है। और इसको स्ट्रेट कर लेना है, ये शॉर्ट तरीका है, ठीक है। और उसके बाद हमने पूरा मुकम्मल कटिंग कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा कटिंग करने हैं, एक को हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमने जो काम करना है वो ये है कि हमने अपने फ्रंट और बैक के साथ तीरे को ज्वाइन कर लेना है कि आया हमारा तीरा कहाँ बैठ रहा है, कहाँ सेट आ रहा है। जो हमारे फ्रंट पे सरवटें नहीं पड़ेंगी, बिल्कुल भी हमारा बिल्कुल फ्रंट साफ होगा। इसी तरह होता है जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह आप तीरा कटिंग करेंगे तो कभी भी आपके फ्रंट पे सरवटें नहीं आएगी। ये देखें, यहाँ से हमने एक कट लगा लेना है और एक यहाँ से लगा लेना है बैक साइड से। और यहाँ से हमने 3.25 रख लेना है, यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है, ठीक है। ये कोई 3.5 भी रखते हैं, वो जो सारी चीज़ है वो कस्टमर को आपने देख के करनी। और यहाँ से हम 9.10 पे, क्योंकि हमारा 9.5 जो है वो तीरा तैयार आएगा, ठीक है। तो आधी इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। और यहाँ से हमने गुलाई देनी है ताकि हमारा तीरा जो है फ्रंट और बैक की साइड
बिल्कुल जॉइंट हो जाए और उसमें कोई सरवट ना आए, बिल्कुल मिला के आपने काटना है। और यहाँ से इसको गुलाई करनी है। गुलाई के बगैर अगर आप छोड़ देंगे तो आपके फ्रंट पे सरवटें पड़ेंगी और आपका बाजू अच्छी तरह से नहीं बैठेगा। और यहाँ से हमने 3.25 पे निशान लगा लेना है और यहाँ से हमने इसको इसका जो है नीचे बैक वाली साइड से भी हमने इसको कटिंग करना है, इसलिए कि हमारी बैक साइड पे जो सरवट वगैरह पड़ जाती है ना, कपड़ा उठा होता है, तो वो चीज़ हमारी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हमने कमीज़ की जो बैक साइड है उसको भी हमने शेव दी थी, डाउन किया था, और तीरे की बैक साइड को भी हमने डाउन कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे बैक साइड पे जो सरवटें पड़ती हैं वो नहीं पड़ेंगी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ जाएगा हमारा तीरा। और इसी तरह हमने फ्रंट को भी साफ कर लेना है। और ये हमारा जो है तीरा डबल तीरा कटिंग हो रहा है। ठीक है, देख लें आप, साइडों से भी गुलाई है, हर तरफ से हमने नए स्टाइल के साथ हमने तीरा कटिंग की है। और ये इंशाल्लाह हमारे कस्टमर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। कस्टमर को आपने देख लेना है, हेल्दी है, ये नॉर्मल साइज़ है, ये स्मार्ट है, जैसा भी है। तो ये देखें दोस्तों, हमारा सूट तैयार हो चुका। और इंशाल्लाह इसी वीडियो को पार्ट 2 में मैं आपको 2 शलवारें कटिंग करना सिखाऊंगा अलग अलग तरीके से। ठीक है, अभी हमने ये कमीज़, बाजू और तीरा कटिंग कर लिया है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। ये वीडियो हमारी यहाँ ही हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए फिर प्रॉब्लम आती है। तो इंशाल्लाह शलवारें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कटिंग करना सिखाऊंगा, और वो भी अलग अलग तरीके से। जी तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।